हमने 2003-4 से जब काम शुरू किया ना तब हाथ से टिकट इशू होते थे। सीम्स लाइक बहुत ही केओटिक तरीका था पहले, नाउ इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ बहुत आसान हो गया। पूरी दुनिया इज आवर क्लाइंट। आकिफ नाम है मेरा। वीजे के ऊपर आसिफ था और टिकट के ऊपर आरिफ। आई ट्रैवल टू यूएस। ई टिकटिंग आने का एक वजह ये कि टूर ऑपरेटर्स जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए और जो हैंकी पैंकी करने वाले हैं उनका गला घोटा जाए। पाकिस्तान में a lot of travelers they hesitate when they buy travel insurance. बात है अवेयरनेस करवाने की। दुबई की एवरेज टिकट कॉस्ट क्या होगी? तो मिनिमम स्टार्टिंग में 80,000 80,000। अगर एक बंदा को मैं कहता हूँ जी बिजनेस ट्रिप पे भी है, अंदाजन क्या खर्चा होगा? 3.5-4 लाख। ये चलें 3 लाख रुपए का देंगे। उस एक हफ्ते की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट में भी 800 रुपए होगी। दैट्स इट। 800 रुपए के अगेंस्ट यू गेट $10,000 की मेडिकल कवरेज। रोल ऑफ अ ट्रैवल एजेंट कम्स कि वो आपका पेन खुद लेता है। क्वालिटी शुड नेवर बी एन एक्सीडेंट, इट शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेटजी। Assalamu alaikum. Welcome to the third podcast of End-to-End Travel and Tours. Our topic for discussion today is why travel agencies are still relevant. And a second topic for today is also, is travel insurance really that important? Now, before we begin, let me just introduce our company. End-to-End Travel and Tours is a one-stop solution for all your travel needs. We're here to assist you with airline ticketing, hotel bookings, visas, travel insurance, and meet and assist. Anything that's related to travel, we're here, we've got it sorted. Now, if you want to reach out to us, visit our website or contact us through social media. Let me introduce our guest for today. First, we have Mr. Ali Nisar. He's the managing partner for Time Travel and Tours. Instead of joining the family business, he chose the travel industry and has been working in it for over 2 decades. He has seen this industry thrive and grow as well as get revolutionized with the help of technology. Our other guest for today is Mr. Akif Zia Malik. He is the head of commercial at a leading insurance company. He joined the insurance industry with AIG Pakistan as the head of the accident and health department, including travel insurance. He has been actively involved with travel agencies and airlines. Assalamu alaikum to both of you. वालेकुम अस्सलाम। I'll start with you, Mr. Ali. You've been in this industry for a long time, as you said, like over 2 decades. How have you seen it revolutionize? How has it like stayed up to date with all the technology? Like technology तो it's a recently adopted phenomena in our part of the world or this country. हमने 2003-4 से जब काम शुरू किया ना तब हाथ से टिकट इशू होते थे। वो एक बंदा जा रहा होता था लेने टिकट्स, एक इंस्ट्रक्शन क्लाइंट से अलग कम्युनिकेशन है, इसकी इशूंस का एक अलग मैकेनिज्म था। वो तो बाय 2008 इट गॉट ऑल फ्रॉम मैनुअल टू ई टिकटिंग। सही। तो वो शुरू के जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा तो वो 2-5 साल तो हम इसको रेवोल्यूशनाइज इस तरीके से दिया कि जब बाय द एंड ऑफ 2008 there were no riders going up and down to get the ticket issued from the airline office, get the confirmation number manually. एयरपोर्ट पे बंदा खड़ा है और वो टिकट का कोई डिजिट मिस हो गया, टिकट नंबर का बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल शुरू करना है। तो फिर वो एक अलग लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था एयरपोर्ट पे। तो बाय 2008 it was completely digitalized. I would say electronic tickets have completely replaced the manual tickets. I mean, it seems like बहुत ही chaotic तरीका था पहले, and now it's just sort of बहुत आसान हो गया, streamlined. अभी तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत आसान हो गया ना कि कोई ओवर बुकिंग अब एयरलाइन के एंड पे भी नहीं होती थी। जी। एयरलाइन के पास प्रॉपर एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एवरी डिटेल कि जो पैसेंजर आ रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका नाम एग्जैक्ट एज पर पासपोर्ट क्या है, कोई भी एरर का चांस बहुत मिनिमाइज हो गया है। प्लस दुनिया सुकड़ गई है। अब हम पाकिस्तान में या कराची में बैठे, पूरी दुनिया इज़ आवर क्लाइंट, होल ऑफ द कॉन्टिनेंट, Everyone, the planet client. हमारा क्लाइंट बन सकता है। यू जस्ट हैव टू हैव प्रॉपर नेगोशिएशंस, Yeah. you have to have proper contacts, and every person on planet Earth can be your client. You can serve him. I'll tell you very बड़ी आपने एक मज़ेदार बात बोली या हिस्टोरिकल बात बोली। एनेक्डोट मेरे साथ खुद हुआ था। अच्छा, माय नेम इज़ आकिफ, AKIF। जब आप पहली दफ़ा किसी को बताते हैं वो शायद आतिफ बोलता है या आसिफ बोलता है या आरिफ बोलता है, जो आर मोर कॉमन नेम्स। अर्ली 90s में, अच्छा, माय डैड यूज्ड टू बी विद PIA एज अ कैप्टन, सो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग जो है वो हमारी रहती थी। अच्छा, अर्ली 90s में आई रिमेंबर आई ट्रैवल टू USA। आकिफ नाम है मेरा। वीज़े के ऊपर आसिफ था और टिकट के ऊपर आरिफ था।
ठीक है, और वो आई ट्रैवल टू यूएसए ऑन दैट, इट्स अ trio of errors. एग्जैक्टली, ठीक है, बट हो गया था. Those are, I would say, old days. I I don't agree. think they would let you travel now if that ना, happened. सवाल ही नहीं पैदा अब तो होता, सवाल नहीं पैदा अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता. Yeah. I mean, अब तो सख्ती ऐसी है. असल में एजेंट्स भी बड़े स्मार्ट होते थे. दे यूज टू मैनिपुलेट एयरलाइंस एज वेल. ई टिकटिंग आने का एक वजह ये कि ट्रैवल एजेंट्स या टूर ऑपरेटर्स जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, ठीक. और जो हैंकी पैंकी करने वाले हैं उनको फिर उनका गला घोटा जाए कि गैर ज़रूरी मुनाफे भी ना कमाए जाएं. सही. इस वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई है. Fair enough. अच्छा, आई हैव टू आस्क, आपका फैमिली बिजनेस था क्या जो आपने साइड में करके आप ट्रैवल में आए? मेरा फैमिली बिजनेस तो टेक्सटाइल रिलेटेड था, यार्न ट्रेडिंग, तो इम्पोर्ट. so now as of today, do you think आप मुतमईन हैं अपने डिसीजन से into work for entering the travel industry? एब्सोल्युटली यस. And why? इसके दो रीजंस हैं. देखें, हम आई वुड बी ऑनेस्ट कि जब हम अपने किचन में बैठ के ना हम बिज़नेस सुनते थे कि कारोबार, या हम पंजाबी में कहते हैं व्यापार कैसे हो रहा है, लेकिन उसमें मुझे एक बड़ा इशू था कि उनका डिसिप्लिन नहीं थी. लाइफ थे रईस आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बजे जा रहे हैं दफ्तर, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मगरिब पढ़ के वापस आ रहे हैं. लाइफ में वो कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ये डिसाइड कर दिया कि ये कहने को तो ठीक है हर चीज़ हमारी है, लेकिन एक वाव फैक्टर नहीं है कि एक जल्दी उठने का, दफ्तर की मैनेजमेंट, ऑफिस पे. मैं फिर वही कहूँगा कि जो कुछ भी आज हमारे वालिदैन की वजह से, मैं बस एक चीज़ थी कि ये जो इल डिसिप्लिन लाइफ है ना, मैं ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो सकती. और जब हमने काम शुरू किया, फिर काम करने का जुनून था. 7-8 बजे ऑफिस चले जाते थे, और मगरिब के बाद वो हमारे काम का डिमांड भी थी, क्योंकि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सुबह 9 बजे दफ्तर खोल के उनकी डिमांड आना शुरू हो जाती है. तो वो उस वक्त, जब मैं आपकी बात करूँ 2003 में, वो तो था भी मैनुअल दौर. मोबाइल भी इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन उसकी आहिस्ता आहिस्ता हो चुकी थी इंट्रोडक्शन. तो बस एक डिसीजन था, अल्लाह ताला ने चूज़ करना था. मैं सर्विसेज में आ गया, और वालिदैन अभी भी अल्लाह उनको हयाती दे, वो अभी भी अपना वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है. उनके लिए वो काम ठीक, हमारे लिए ये काम ठीक. बिल्कुल. चलिए, sounds like you made the right choice. Allah has been kind जी, I can't come. Alhamdulillah. चले, आकिफ भाई, now it's on to you. पाकिस्तान में a lot of travelers they hesitate when they buy travel insurance. They're like, do we really need it? I mean, ठीक है, हमारा कोई 10 दिन का टूर है, 12 दिन का टूर है, क्या ज़रूरत है, क्यों लूँ मैं ट्रैवल इंश्योरेंस? अच्छा, मैं इसका खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो आई थिंक ट्रैवल, बल्कि ट्रैवल क्या है, इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो कम है. बट टू मी इट इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट बी लीविंग योर होम, और you should not be starting your itinerary without travel insurance. I can give you so many examples because I've been in this travel insurance trade for a very long period of time. But वो जिसको कहते हैं ना जी, shit happens. ठीक है, हम यहाँ से कराची में हम रहते हैं, हम यहाँ से नथिया गली ट्रैवल करें और वहाँ का हम पानी पिएं तो हमारा पेट ख़राब हो जाता है. होता है. ठीक है, तो हम कराची में रह रहे हैं जहाँ पर ऑब्वियसली पानी की क्वालिटी तो फिर डिबेटेबल है, एंड वहाँ पर पानी की क्वालिटी प्रोबेबली कराची के पानी से बेहतर होगी है. बट बात यह है कि जी वी आर नॉट यूज्ड टू और वी हैव नॉट क्लाइमेटाइज्ड आवर बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन. चले, अगर हमारी, मैं कराची से लाहौर जाता हूँ, वहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब होती है, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई जानने वाला भी मिल जाता है, आपके कोई हो सकता है रिश्तेदार भी हों, और कुछ नहीं तो यार कम से कम बैंक तो साथ है ना, अपने पैसे निकालने हो ये वो. बट इमेजिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू आई डोंट नो समवेयर इन यूरोप और इवन UAE और इवन मलेशिया, आपकी तबीयत ख़राब हो, आप क्या करेंगे? आपको तो हो सकता है लोकल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है वहाँ पर ख़र्चे इस तरह के हों कि आप अफोर्ड ना कर सकें.
आपकी बॉडी तो क्लाइमेटाइज होती नहीं है. You don't even know what accidents can happen. We have seen so many claims जो कि हमारे पास आते भी हैं जहाँ पर पता चलता है. And I'll give you a personal example. So I joined the insurance industry in 2007. 2008 में my wife and my सास they were traveling to USA. तो मैंने उसको पूछा, नए नए थे उस वक्त, ट्रैवल इंश्योरेंस का इतना एक्सपोजर नहीं हुआ था, बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना, तो मैं कहा यार तुमने ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर जानी, वो ले गई. एंड आई रिमेंबर कि सुबह कोई 8:30 पौने 9 बजे करीब मैं ऑफिस जा रहा था, तो उसकी अमेरिका से मुझे कॉल आ गई. उसने कहा कि जी इमरजेंसी होगी. मैं कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कि जी वालदा जो है, मेरी सास और उसकी वालदा, दे वर वॉकिंग एंड शी स्प्रेन्ड हर एंकल. तो हम उसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं. तो मैंने कहा यार ठीक है बिल्कुल लेकर जाओ. एंड शी सेड कि यार इंश्योरेंस उसको कवर कर लेगी. मैं कहा यार कर लेगी. अच्छा, कुछ घंटों के बाद जब मैंने उसको कॉल करके पूछा तो उसने कहा कि हाँ सब ठीक है. डॉक्टर ने जो है वो एक एक्सरे किया और उसने उनको पट्टी वट्टी बांधी. उन्होंने कहा कि जी फ्रैक्चर नहीं है, आप बस टांगे ऊपर करके जो है ना कुछ रेस्ट वेस्ट कर लें. नाउ अगर यही चीज़ परहैप्स पाकिस्तान में हो, अब 2007 में या 2008 की जब मैं बात करूँ उसमें डॉलर 60 रुपये का होता था. परहैप्स उस वक़्त जो है वो पाकिस्तान में ये मे बी एक एक्सरे, डॉक्टर की कंसल्टेंसी, पट्टी वट्टी शायद 1000, 1200, 1500 रुपये, 2000 रुपये में काम हो जाता. उस वक़्त उसका बिल आया था $436.70. That's a big amount. दैट्स हार से भी अब मल्टीप्लाई करें तो Yeah. 25,000 रुपये, जहाँ पर एक एक्सरे हुआ था और उसको देख के, एक्सरे को देखते थे डॉक्टर ने बस पट्टी बांधी थी और उसने कहा कि जी आप रेस्ट कर लें. दैट्स इट. $436.70. एंड आई थिंक मे बी उस वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस की प्राइस थी शायद 1000 रुपये, 1500 रुपये. उस वक्त लोग नहीं कराते थे. बात है अवेयरनेस करवाने की. एंड ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है. आई मीन यू आर इन दी टिकटिंग ट्रेड. दुबई की एवरेज टिकट कॉस्ट क्या होगी? इस वक्त बाई वी स्पीक तो मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 80,000. 80,000. चलो Minimum ठीक है, 80,000. मिनिमम 80,000. ठीक है जी. अगर एक बंदा को मैं कहता हूँ जी बिजनेस ट्रिप पे भी है, 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जाता है, अंदाज़न क्या खर्चा होगा? बॉल पार्क नंबर फॉर द टूर. फॉर द टूर. आई थिंक अगर फैमिली ऑफ 4 भी है, 2 एडल्ट, अकेला ही बंदा कर ले जी, चले अकेला बंदा कर लें तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए 3.5 लाख 4 लाख रुपए लग जाएंगे. चलें 3 लाख रुपए कर दें हम. ठीक है. उस एक हफ्ते की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट में भी 800 रुपये होगी. That's it. That's it. 800 अभी 800 का, ठीक है. 800,000 का. अच्छा, I 800 रुपये की did होगी. not know that. ठीक है. एंड उस 800 रुपये वर्सेस लेट्स से वो बंदा अगर 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए भी जा रहा है और उसने 3 लाख रुपए भी खर्चने हैं, उस 800 रुपये तो परहैप्स अगर वो कराची में जहाँ पर भी कहीं रहता है वहाँ से अगर वो ऊबर, करीम या वन ऑफ दीज राइड हेलिंग सर्विसेज वगैरह लेके भी जाए, उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे. Absolutely. बहुत लगेंगे. 100%. ठीक है. उससे ज़्यादा लग जाते हैं. 800 रुपये. एंड उस 800 रुपये के अगेंस्ट यू गेट $10,000 की मेडिकल कवरेज. $10,000 इज 30 लाख रुपए. I mean, दुबई की जो टैक्सी है वो 15 dirham से शुरू होती है. Agreed. It's more than 800 rupees. That's more than 800 rupees. ठीक है. एंड वो एक $10,000 की लिमिट हॉस्पिटलाइजेशन की, वेदर इट्स एक्सीडेंट, वेदर इट्स मेडिकल, की लिमिट आपको प्रोवाइड करते हैं. $10,000 इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन, 30 लाख रुपए. ठीक है. एंड अमंग अदर थिंग्स. सो फॉर अ प्रीमियम ऑफ 800 रुपये अगेंस्ट एन इंटायर ट्रिप, जो कि परहैप्स आपको शायद 80,000 रुपये की चले टिकट है, बाकी आप होटल में रहे, कुछ खाया पिया है, एक्सेट्रा व्हाटएवर, 3 लाख रुपए भी मैं कहता हूँ जी अगर है, तो यार 800 रुपये क्या माने रखता I think it's a no-brainer. I think you have to go for it now. ठीक है. एंड इफ़ यू थिंक कि यार आपको कुछ नहीं होगा, यू आर amongst a population of 1 billion, 8 billion people in the world. Yeah. ठीक है. It can happen to anyone. The thing is, हम लोगों को अपने immune systems पे इतना confidence है कि हमें थोड़ी कुछ होगा कि 3 दिन के लिए जाने जा सकते देखिए मैं बताऊं, It's just not about even a medical question of immune. illness. It's ठीक है? about I mean, accidents. As I mentioned, my सास
शी स्प्रेड हर एंकल, दैट्स एन एक्सीडेंट। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब इस वक्त जो है वो देयर आर एयरलाइंस जिनकी नॉन रिफंडेबल टिकट्स भी होती हैं। ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं जो कि आपके नॉन रिफंडेबल पोर्शन को कवर कर रही होती हैं। इन केस बिफोर ट्रैवलिंग यू फॉल सिक, योर ब्लड रिलेटिव, आपके बच्चा जो है वो बीमार हो गया, करीबी ब्लड रिलेटिव्स में कोई फौतगी होगी जिसकी वजह से आपको अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा, जो नॉन रिफंडेबल है वो तो नॉन रिफंडेबल है, आप एयरलाइन से जितनी मर्जी बहस कर लेंगे, एयरलाइन तो कहेगी कि जी नॉट माई कंसर्न, आपने ये टिकट ली थी बिकॉज ये आपको थोड़ी सस्ती पड़ रही थी तो आपने वो ले ली। बट उसके भी रिस्क मिटिगेशंस हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है, इट डजंट ओनली कवर द हेल्थ कंपोनेंट, इट कवर्स अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। अगेंस्ट 800 रुपये यार, स्टार्टिंग फ्रॉम 800 रुपये, इट्स नो ब्रेनर। Absolutely. So I agree with you 100%. इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। It's all about awareness. हमें भी जहाँ मैंडेटरी है, जैसे यूरोपियन वीज़ाज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी है, यू कांट स्किप इट। जब तक मैनुअल दौर था ना, जब हमने बात, तब तक हमारे कस्टमर इंसिस्ट करते थे वो भी जाली लगा दो, वो भी फेक लगा दो। अब तो मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी की वजह से वो वेरीफाई होती है, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कोड, बार कोड होता है। जब तक वो एग्जिस्ट नहीं होगा तब तक वो वो वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। और जब मैं खुद काम बहुत ज़्यादा करता था, यही होता क्या ये इसको भी आधा उसको भी जाली लगा दो। That happens. So ये है यार, I mean I think it's a no-brainer. It is. It's a no-brainer considering now that the dollar rates have gone so high. पहले वही टिकट perhaps 40,000 की होती थी जो कि अब 80,000 रुपये की हो गई भी है। वही ट्रिप हो सकता है 3 दिन वाली आपको मे बी 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट करती होगी, जो कि अब 3 लाख रुपए की हो गई है या 3.5 की हो गई है। I mean against that, if you 800 रुपये क्या माने रखता है यार। I mean, yeah, again, as we said, no brainer. Get the travel insurance. Yeah. I सुकून mean, से ट्रैवल करे बंदा, एंजॉय करे ट्रिप को, लाइक खाम में इतना ना टेंशन लेने की जरूरत, कोई बीमार पड़े। There have been events in my life. oh yeah. I mean, I'm sure you guys have like टर्की में एक फैमिली को, अंतालिया एक उनका बहुत फेमस सिटी है, वो पूल में जैसे ही वो बच्ची उतरी और वो आई डोंट नो, वो बस वहीं खड़ी हो गई, पीछे से एक और बच्चा आया और उसने उसको हिट कर दिया वो ट्यूब से। और वो इतना मैसिव केस, इतना बुरे तरीके से हिट हुई, और वो फिर जिस तरीके से फिर उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया, वो यकीन करें कि अगर उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, जो एक तो इमरजेंसी के फिज़िकल इंजरी अलग, उसका जो एक बंदे को मेंटल प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर के बच्चा, और जो फाइनेंशियल प्राइश है, पराई ज़बान देश में, तो ही वाज वेरी, इन द एंड अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो, और हॉस्पिटल बिल वाज टेकन केयर ऑफ बाय द इंश्योरेंस। आई मीन आई हैव अ पर्सनल, क्या कहते हैं, इसी का मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में तो उस वक्त जानना शुरू हुआ कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले माई आंट वाज इन हैम्बर्ग and she sort of just collapsed. She had to go to the hospital. She was hospitalized for like 3-4 days, and I think CT scans and all, बहुत कुछ हुआ. At the end of the day, I think उनका बिल शायद €100 या something आया. We were shocked कि इतना सब कुछ travel insurance cover करता है. Like we didn't even know about this. हमें लग रहा था पता नहीं कितने हज़ार का, क्योंकि I didn't know कि मेरी travel insurance हुई भी है. I thought and this is where obviously we need support of the travel agencies as well. Because the first point of contact for a traveler, ऑनलाइन वगैरह जो भी उसने रिसर्च करने के बाद, जब उसने टिकट लेनी हो या उसने टूर पैकेज बनाना हो, तो फिर वो ट्रैवल ट्रेड के अंदर किसी ट्रैवल एजेंसीज से कॉन्टैक्ट करता है। सो आई थिंक वन ऑफ आवर रोल इज़ दैट वी ट्राई एंड क्रिएट अवेयरनेस विद इन द ट्रैवल एजेंसीज। टेस्ट केसेस भी बताए जाते हैं, जिस तरह आपने बताया। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस, बट उस ट्रैवलर का परहैप्स द फेस इज़ यू गाइस। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी एफर्ट करें, हम भी अपनी एफर्ट करें। नहीं, हमने मॉडर्नाइजेशन इसी को कहा, या वैल्यू एडिशन इसी को कहा। जब हम 2003 में, मैंने और मेरे पार्टनर ने काम शुरू किया था, कि वजह सेलिंग टिकट्स, ट्रैवल एजेंसी। अभी भी 2025 में लोग ट्रैवल एजेंसी कहते हैं, लेकिन 2008-9 के बाद जब जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज बहुत ज़्यादा, तो हम अपने आप को टूर ऑपरेटर्स की तरफ चले गए।
नॉट जस्ट टिकट्स तो अब एक बेसिक पार्ट हो गया. अब हम वैल्यू एडिशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी होटलिंग है, आपका टूर है. दैट्स वेयर अ ट्रैवल एजेंट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ टूर ऑपरेटर. बहुत सारे लोग आज भी ट्रैवल एजेंट्स ही हैं जो सिर्फ टिकट्स का काम या टिकट्स पे फोकस है. लेकिन आज के दौर में सर्वाइवल जो है एक ट्रैवल एजेंट का सिर्फ टिकट्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं. इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट टाइम सेविंग, इट्स अबाउट अ सजेशन कि आप अगर पराए देश या पराए शहर की टिकट देख रहे हैं, आप एलिजिबिलिटी भी अपनी चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ उन्होंने टिकट सस्ता देखा और वो चले गए. ये तो पता चला कि एलिजिबिलिटी नहीं है, आप ट्रांजिट नहीं ले सकते, या मोर देन डिजाइड या अलाउड ट्रांजिट आप ले रहे हैं, तो दैट कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ मनी. अली साहब, आपसे वापस सवाल. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत आ गए हैं. डू यू थिंक कि ट्रैवल एजेंसीज आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, लेकिन या फिर अभी है फ्यूचर में इनका कोई? लाइक आई सेड, देखें अगेन ट्रैवल एजेंसी भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही हैं. अगर वो वक्त के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको होना चाहिए. सिर्फ वही कि हम सिर्फ टिकट बेचते हैं, कोई आएगा हमारे सामने बैठेगा और हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, दैट आर ओल्ड डेज, दैट इज़ थिंग ऑफ द पास्ट. वाइल वी स्पीक इन दिस मॉडर्न एरा, ट्रैवल एजेंसीज या टूर ऑपरेटर्स के, मैंने जैसा कहा ना, इट्स ट्रैवल एजेंट्स को एक तो सबसे पहले अपनी बहुत सारी वैल्यू एडिशन को सिंक्रनाइज कर रहे हैं और करना चाहिए भी. पास्ट लोगों को जो मॉडर्न बुकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आई अप्रिशिएट देयर टेक्नोलॉजी. वो इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी लेके आते हैं, कंसाइज करके कंसाइज ट्रैवलर को बता देते हैं. आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है. लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के साथ हैंडलिंग की बात करते हैं, तो इतना आसान नहीं है उस चीज़ को एक्वायर करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना. कि आपने जो चीज़ सामने देखी है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, डज इट इवन सूट यू, डज इट, आर यू इवन क्वालिफाइड फॉर इट, या क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है. तो दैट्स वेयर रोल ऑफ अ ट्रैवल एजेंट कम्स, कि वो आपका पेन खुद लेता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि ये जो रूट हम देख रहे हैं या जो आपको सजेस्टेड है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं. दैट इज़ वेयर द ह्यूमन टच कम्स. इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ रही है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वो इज़ इट रेलेवेंट टू यू, आर यू क्वालिफाइड फॉर इट. क्योंकि हमें अगेन हमारे डीएनए में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हैं. ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब आजकल के एक तो चीज़ आपके सामने आ रही है, लेकिन उसको समझना कि इसके कौन से, कोई आपने ले तो लिया, और मैं अब उसकी ट्रांजैक्शन की एक अलग बात करें, लेकिन जब टिकट आपने परचेज़ के लिए, इसकी कंडीशन क्या है. जैसा कि भाईजान ने कहा कि टिकट रिफंडेबल भी है कि नहीं, नॉन रिफंडेबल भी है कि नहीं, अगर चेंज करेंगे तो क्या पॉलिसी होगी, ये इसके पढ़ने के लिए पूरा टाइम चाहिए होता है. दैट इज़ वेयर अ गुड ट्रैवल एजेंट और अ टूर ऑपरेटर कम्स इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मेरे ख्याल है अभी बहुत ज़्यादा टाइम, मैं ये तो नहीं कहता कि ट्रैवल एजेंट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उनको अपने आप को मॉडर्नाइज़ करना, उनको अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा. टूल्स हैं, चीज़ें हैं, सिर्फ उसको एक अडेप्टेबिलिटी पे लेके जाना है. आकिफ भाई, बैक टू यू. पोस्ट पैंडेमिक कैसे ये इंश्योरेंस इवॉल्व हुई है? आर देयर एनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू गाइस I think post pandemic, जब आप ये समझें कि जी ट्रैवल एक दफ़ा दोबारा से स्टार्ट हुई, तो उस वक़्त ऑल द पॉलिसीज़ और ऑल द ट्रैवलिंग के लिए जितना भी होता था, वो कोविड की सर्टिफिकेशंस, इंजेक्शंस, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, वो मैंडेटरी हो गई थी. कि जी आपने मास्क भी पहनने हैं, आपने जो है वो कोविड की सर्टिफिकेशंस भी दिखानी है. कुछ ने कहा था कि जी ये वाली वैक्सीनेशंस की होंगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इनकी होंगी तो आप नहीं करेंगे. सो ऑब्वियसली ट्रैवल इंश्योरेंस भी उस वक्त इवॉल्व हुई थी, एंड
कोविड की वजह से इफ़ यू गेट हॉस्पिटलाइज या अगर आपकी ट्रिप जो है वो कैंसिल होती है या कर्टेल होती है, तो ये वाले फीचर्स भी जो हैं वो उसमें बिल्ड हो गए थे। सो पहले जो चीज़ें होती थी वो तो थी ही थी, बट एडिशनल कवरेजेस जो हैं वो अब ट्रैवल इंश्योरेंस में आ गई थी, स्पेशली कोविड रिलेटेड। सही। Whether you get hospitalized because of that, whether your trip gets curtailed because you have been infected with the COVID virus, या आपको अपने कोविड वायरस पता चला कि जी आप कोविड की वजह से आपको पाकिस्तान में ही अपनी ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। सो वो वाली कवरेजेस जो हैं वो बिल्ट इन हो गई थी ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। अच्छा अच्छा, आई मीन दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा ये And I tell you what, कि ड्यूरिंग दोज डेज एयरलाइंस ने अपने या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, चाहे मॉडर्न वर्ल्ड के थे यहाँ के, उनकी इतनी चौक हो गई कि उन्होंने भी अपनी हेल्प लाइन ही बंद कर दी। दैट वाज प्लेस वेयर ट्रैवल एजेंट वर वेरी मच रिस्पॉन्डिंग टू एवरी कॉल। जो अच्छे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो बाकी प्रोफेशनल लोग हैं, जिनका उड़ना बिछोना यही काम है, तब पता चला था कि एक अच्छा टूर ऑपरेटर होना कितना ज़रूरी है। तो आपके दोस्तों में या आपके फ्रेंड्स में या आपके जिनका रिलायबिलिटी, उसके बाद से पोस्ट कोविड हमारा काम एज अ टूर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो एक कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन चैनल ज़रूर खुले हैं, जी जी, लेकिन कोविड के जो हिट थी लोगों को, उसकी वजह से कि एक गेम कम्युनिकेशन के लिए, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए वो सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, और सारे वो इवन के एयरलाइंस ने तक रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था। रिफ़ंड पॉलिसी 6 से साल रिफ़ंड नहीं, और अच्छे एजेंट्स ने कहा था हम एयरलाइन से ले लेंगे, आप हमसे ले लें, यू जस्ट स्टे काम। एजेंट्स वर सेविंग द डे। अच्छे एजेंट्स स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी जो है ना, जिस तरह अली भी जिक्र कर रहे थे, आई थिंक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गवर्नमेंट्स की भी जो कुछ पॉलिसीज़ चेंज होती थी कि अच्छा जी आपको कोविड सर्टिफिकेशन चाहिए है, या कोई कहता था कि जी आपको फलानी कंपनी के कोविड वैक्सीन होगी तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, इस कंट्री की होगी, इस कंट्री की नहीं होगी। ठीक है, अब उस अनसर्टेनिटी के अंदर यू नीड अ रिलायबल पार्टनर जो कि आपको गाइड कर सके, और वो रिलायबल पार्टनर यूजुअली इज़ योर टूर ऑपरेटर। अभी भी मैं अगर अपनी भी अगर बात मैं करूं एज अ लेमैन, कि परहैप्स अगर मैंने अपने आई डोंट नो किसी रिश्तेदार के पास जाना हो इन यूएई मिसाल के तौर पे, तो मैं, और मुझे पता है कि यार मैं उसी के पास ही रहूँगा, 4 दिन रहूँगा, खुद ही जो है वो जो भी है घूमना फिरना है व्हाटएवर, शायद जो है वो घूमना फिरना नहीं है, 4 दिन मैंने वहाँ पर रहने के लिए जाना है, तो मैं कहूँगा कि चल यार, मैं हो सकता है मैं एज अ लेमैन मैं कहूँगा यार मैं अपनी टिकट खुद ही कर लेता हूँ, ठीक। बट इफ़ आई हैव टू टेक माई फैमिली विद मी, आई विल डेफिनेटली इंगेज अ टूर ऑपरेटर, बिकॉज मैं फिर उसके साथ नहीं देना चाहेंगे। रिस्क के अलावा मैं उसके साथ बैठ के, दैट पर्सन विल परहैप्स बी एबल टू गाइड मी कि जी अच्छा बच्चों की एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें हैं, बड़ों की एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें हैं, इतने बजे से इतने बजे ये वो सारा कुछ। बिकॉज अगर मैं अपने ओन पे जाऊंगा तो मुझे पहले तो ये पूरी की पूरी रिसर्च करनी है, फिर मुझे जो है वहाँ पर जाके होटल्स के ऊपर भी रिसर्च करनी है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना, फिर जो है वो कोई ना कोई गाड़ी या कोई टैक्सी और ये तमाम की तमाम चीज़ों पूरे के पूरे उस टूर को मुझे खुद मैनेज करना है एज द हेड ऑफ द फैमिली। सही है। वेयर एज आई वुड रादर गिव इट टू अ प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर कि यार ये हैं 4 लोग, ये इनका प्रोफाइल है, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, हेल्प कर दें। We take your pain. Exactly. And then I totally agree. And you concentrate on your actual job. Exactly. I totally business agree. है आपका काम, ये काम हो ज़रूर लोग करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ट्रैवल है एक काम एक्सपीरियंसेस का,
अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट वीकेंड आप कहाँ थे, अगर आप कहीं नहीं गए थे तो आपको याद ही नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे की मूवमेंट की होगी बिल्कुल सही वो कह बिल्कुल याद है। कहीं वो कि यार मैं आज स्कर्दू में था, या मैं किसी भी कोई इवेंट में था, या कोई वो सफ़र आपको ज़रूर याद रहेगा, जितने भी वीकेंड्स आपने किए होंगे, और अच्छा सफ़र होगा तो ज़्यादा याद रहेगा। बिल्कुल। तो वो हम हमेशा यही लोगों को समझाते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपका टाइम कितना कीमती है। I totally agree, यार। इज इट योर प्रायर जॉब टू डू इट, देन मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस कि ट्रांजैक्शंस कैसे होगी, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हिसाब। और अगेन ये एक्सपीरियंस से आता है जब आप एक स्क्रीन फेयर देख रहे होते हैं, एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू कंक्लूड, वो एक्चुअल फेयर नहीं होता जब आप बैंक को पे कर रहे होते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड। उसमें 10-12% 14% का हमेशा डिफरेंस आ जाता है इन डिफरेंट टैक्सेस, स्पेशली इन फॉरेन बिल्कुल सही। कैरियर्स आर इन्वॉल्व, या योर फॉरेन ट्रिप्स इन्वॉल्व। आई टेल यू, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो आप PIA का टिकट भी परचेज कर रहे हैं वो भी डॉलर्स में परचेज हो रहा है पीछे। अच्छा मुझे भी नहीं पता था। हाँ, अगर आप 18-20 लाख का जो भी टिकट परचेज करेंगे, वो आपको पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो FED लगाएगा, फिर फॉरेन करेंसी चार्जेस पे जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग, ओके। इट कम्स डाउन विद एक्सपीरियंसेस। और सबसे बड़ी बात है कि रिलायबिलिटी। आप अगर आप किसी भी अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा आप सारे ही अच्छे हैं या सारे ही बुरे हैं, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर के साथ जब भी आप ट्रैवल करें, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे। आपको इन्फॉर्मेशन का सरप्राइज़ नहीं मिलेगा कि यार अच्छा व्हाट डू आई डू विद इट, ये सरप्राइज़ आ गया। आपका ट्रांजैक्शन आपने जमा की कि आपने 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, पता चला वो 30-35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा टैक्सेस की मद में चला गया। नहीं, मैं तो जी, I mean, especially if you're going on a tour, especially with your family, loved ones, etc. You let the thinking, or you should outsource the thinking to professionals. Yeah. शेयर योर माइंड, बस। एब्सोल्युटली वी आर Like customization करवा लें अपनी माया customer कि यार base। टेंशन Tell the सारी guy what तुम्हारी, you want. मैंने खाली वहाँ पर जाके जो है ना वो एंजॉय करना है, Exactly, बट relax टेंशन करना है, तुमने business लेने करना है, हैं। काम करना है। सो बजाय इसके कि मैं वहाँ पर बैठ के जो है ना वहाँ की आई डोंट नो जो राइड हेलिंग सर्विस है उसको कॉल कर रहा रिसेंटली हूँ। हमारी मार्केट में जो एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ है फिक्स्ड डिपार्चर्स का, आई बिलीव दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल। ओके, ये मॉडर्न वर्ल्ड में तो था, UK में आपके पास फिक्स्ड डिपार्चर्स, USA में फिक्स्ड डिपार्चर, पूरे यूरोप में फिक्स्ड डिपार्चर्स। पाकिस्तान मार्केट में भी अब ये कुछ अच्छे लोग हैं जो फिक्स्ड डिपार्चर्स का काम करते हैं कि दे सेट अप अ डेट और कहते थे 3 लाख रुपए का टिकट है और 3 लाख रुपए का पूरा पैकेज है, सब कुछ आप हम पे छोड़ दें। तो उसमें ये कि इकोनॉमिकल बहुत पड़ जाता है, और वो शख्स या वो बच्चा जो किसी के साथ या बहुत सारे पैसे नहीं खर्च कर सकता, वो इनके साथ इन्वॉल्व होकर घूमता है। लेकिन अगेन इट्स अ टूर ऑपरेटर हु इज मैनेजिंग ऑल द मेन। इट्स अ रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव। that's good, yeah. That's really good. That's good. I mean, I think catering to the मासेस है masses and the generations which understand this. ठीक है, परहैप्स जो ऑफिस में काम करते हैं या जिनके बच्चे होते हैं या जिनके बच्चों की छुट्टियां के टाइमिंग के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है, उनके लिए इट मे बी डिफिकल्ट, बट आई थिंक एनीबडी who's an adult who wants to just roam around the world, यार उनके लिए तो इट्स एन आइडियल थिंग। मैं तो यही कहता हूँ कि जो ट्रैवल नहीं भी कर सकता था तो वो ट्रैवल किया एग्रीड। एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, क्योंकि वो अकेला करना चाहेगा तो उसका एक खौफ बिल्कुल होगा, ठीक। नहीं कर सकेगा, और उसको एक वन स्टॉप सोल्यूशन हर चीज़ का मिला, उसका एक्सपोजर और एट द प्राइस। अगर आप पाकिस्तान में घूमने जाएं जो आजकल की महंगाई की वजह से वो ट्रिप लोकल शायद ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, इनसाइड वो इंटरनेशनल करें और इंटरनेशनल एक्सपोजर करें। So again, that is how the travel trade is evolving. Yeah. Very interesting. Asha, now I have a question which is for both of you. Okay. There are many misconceptions regarding your fields. Mm-hmm. Acha, and secondly, how do you choose the right travel agent or the right insurance person? Like हम बात कर रहे हैं कि ठीक है आपका बंदा आपका जो एजेंट है वो अच्छा हो तो आप पैसे ही बचाते हैं, आपका जो क्या कहते हैं जो हॉलीडे बड़ी सुकून से गुजरती है। How do you choose the right agent? इतने सारे हैं हमारे पास, how do you choose the right one? देखिए सबसे पहले तो
आज अगेन मैं फिर बार बार आज का मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना बहुत सारे फेक या सिर्फ वर्चुअल एजेंट्स या टूर ऑपरेटर्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो सवाल आप जिससे भी कर रहे हैं, आर यू अ लीगली एग्जिस्टिंग टूर ऑपरेटर? आपका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज से लाइसेंस बना हुआ है? ये उसकी लीगैलिटी पे कि हाँ ये एक टैक्स, इस पे गवर्नमेंट की नज़र है, इसने अपने आप को गवर्नमेंट ने रजिस्टर कराया हुआ है, फिर कितने अरसे से काम कर रहा है। सही। ये सारी तीसरा और भी जो सर्टिफिकेशन हैं, आप ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं, आप आयाटा के मेंबर हैं। ये एक बेसिक आपके चेक लिस्ट होनी चाहिए कि आप सिर्फ सस्ते की तरफ ना जाएं, सिर्फ अफोर्डेबिलिटी या चीप टिकट्स की तरफ ना जाएं। आप देखें कि जो भी डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च। और मिसकंसेप्शन ये महंगे की नहीं होती, ये आपके ट्रस्ट की होती है। अगेन आप एक पराए शहर, पराए मुल्क, पराई ज़बान में और पराई फॉरेन करेंसी में हैं, आप के साथ अगर कोई मिस कमिटमेंट या मिस हो गई, कौन आपको कोई जवाब नहीं देगा। अगर एक सिर्फ वर्चुअल ट्रैवल एजेंट है, ये वर्चुअल टूर ऑपरेटर है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको बहुत कहते हैं ना इतनी आंखें चुनिया गई वाली कि भाई इतनी माइंड बॉगलिंग ऑफर, अनरियलिस्टिक ऑफर, तो उसका वो कहीं ना कहीं बम फटेगा। टू गुड टू बी ट्रू वाली। टू गुड टू बी ट्रू, कहीं ना कहीं बम फटेगा वो आपका। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सोशल मीडिया भी भरा हुआ है कि सोशल मीडिया पे तो आते ही रहते हैं कि क्योंकि इतना cheap I've हुआ। seen these cases a lot, which is why I'm asking you कि for the general public कि how do you choose a right travel agent, and of course you made some very strong points कि do your own research, ask questions, like don't hold back। वैसे ही इतने सवाल हम करते हैं लेकिन कोई सही सवाल बंदा करे ना। इसमें सब एक और जो मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, कोई भी शख्स अगर अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे मांग रहा है तो वो आज ट्रैवल एजेंट नहीं है। There you go। कि यार आप मेरे अली निसार के अकाउंट में जमा करा दें पैसे, वो कंपनी का अकाउंट है, एक लीगल इस बैंक में आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, आप पैसे जमा, लेकिन है वो कंपनी का अकाउंट। एक ज़ात पे ट्रस्ट ना करें, एक निज़ाम पे ट्रस्ट करें। I think डोंट ट्रस्ट इन इंडिविजुअल। you said some very good points. So even in our industry, of course, insurance companies are regulated by a regulator, Securities and Exchange Commission of Pakistan. So हमारे let's say अगर मैं बात करूँ तो from an insurance perspective, our distribution channels, एक तो obviously कंपनी का अपना direct distribution channel होता है, whether it is their website, app, etc. The other and perhaps a bigger distribution channel is travel agencies, tour operators, etc. So client का जो front face है वो तो travel agency / tour operator होता है। अच्छा, कंपनीज बेतहाशा कंपनीज हैं जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दे रही होती हैं। द थिंग दैट आई ऑलवेज आस्क कि जी आपने इज़ चेक आउट कि जी इंश्योरेंस कंपनी का काम जो है बेसिकली क्लेम्स पे करना है। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि जी इंश्योरेंस कंपनी का काम क्लेम्स पे करना है। दैट इज़ द product that we are selling. It is not that piece of paper that you get, but what happens once that piece of paper gets activated. So we advise our distribution partners कि जी आपको ये देखना है कि which company has got a speedier claim process and easier claim process एंड द सिस्टम्स इन प्लेस। किसकी रेपुटेशन इस तरह की है कि आप कहो कि अच्छा यार मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज रिमेंबर क्लाइंट हो सकता है आपका है, आपने उसको आई डोंट नो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का जो है वो एक टूर दिया हुआ है। उस टूर में दी डिफरेंस इन इंश्योरेंस प्रीमियम एक्स कंपनी और वाई कंपनी में शायद 200 रुपए का होगा, बट इफ दैट इंश्योरेंस गेट्स एक्टिवेटेड, एक कंपनी जल्दी रिएक्ट करती है और दूसरी जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती, तो उस क्लाइंट का ट्रस्ट आपसे खराब होगा।
एज एन इंश्योरेंस कंपनी हम तो सेकेंडरी हैं, द क्लाइंट नोज योर कंपनी फर्स्ट. सो डोंट लुक एट कि यार ये 100 रुपये ज़्यादा है, ये 100 रुपये कम है, ये 200 रुपये ज़्यादा है, ये 200 रुपये कम है. बिकॉज इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स 6 लाख के पैकेज में 100 रुपये 200 रुपये कोई मायने नहीं रखता. बिकॉज अगर वो क्लाइंट ख़राब हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम दे विल मे नॉट वांट टू डू बिजनेस विद यू कि यार इसने मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट दिया था जिसने मुझे एंटरटेन भी नहीं किया. So the trust level is with our distribution partners. So we tell or we work with the distribution channel and obviously कि यार कौन सी कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट ज़्यादा है. प्लस अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी ऑनलाइन विद QR कोड वगैरह जो है वो पॉलिसीज़ भी इशू हो रही होती हैं, जो कि एम्बेसीज भी के पास लिंकेज होती है कि आप उसको जाके वेरीफाई कर सकें. सो मॉडर्नाइजेशन के हवाले से कि कोई 2 नंबरी नहीं हो रही. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रैवल पार्टनर्स कि जी वो जिस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं वो फिर उस कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट भी करते हैं. I said the way I put it, is quality should never be an accident. It should always be a strategy. आप अच्छे लोगों से काम करें, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, अपने मुल्क में Well हैं. said. रिलायबिलिटी हमारी भी एक सप्लाई चेन है, एयरलाइंस हैं या और भी बहुत सारी एक्विजिशन जो भी हमारी चेन्स होती हैं, सप्लाई चेन्स हैं. इस तरह जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस हैं या लोकल होटल सप्लायर्स हैं, अच्छे होटल से काम करें. क्वालिटी पे जब भी आप काम करेंगे तो यू ऑलवेज बी सेटिस्फाइड. आप रात को सुकून से सोएंगे. और अगर कोई अलार्म बज भी गया देन यू नो दैट देयर इज़ अ टीम रिस्पॉन्डिंग टू इट. Yeah. वो इट वुड बी टेकन केयर ऑफ. जस्ट स्टे काम, स्टे फोकस्ड. इट विल बी. मसला वहाँ आता है जहाँ कोई भी टूर ऑपरेटर या इंडियन कस्टमर भी कहते हैं हमें तो चीप चाहिए, सस्ता दे दो, चीप दे दो, चीप दे दो. तो ये वक्त के साथ साथ आपको पता कस्टमर को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि जो लेस अफोर्डेबल या चीप टिकट्स हैं, ये जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई ना कोई ना कोई वजह भी है. तो सस्ता है तो क्यों सस्ता है. और जो प्रीमियम चीज़ है वो प्रीमियम है और आज Premium ही रहेगी. प्रीमियम ही रहेगी. और आई थिंक हमने जितनी भी पिछले 20 साल में अगर हमारा सर्वाइवल रहा है और हम आगे अपनी जनरेशन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वालिटी शुड नॉट बी एन एक्सीडेंट. ये हमारा मोटो होना चाहिए. बिल्डिंग ऑन टू व्हाट अली सेड, इवन द एयरलाइंस अगर आप देखें तो उन्होंने भी ABC एक नॉन रिफंडेबल वाली टिकट भी होती है, एक वो होगी जिसमें परहैप्स वो कहेगा कि जी आप इतने पैसे दे के रिफ़ंड कर सकते हैं या आइटिनरी या टाइम स्लॉट चेंज कर सकते हैं. तीसरी जो है वो कहती है कि अच्छा जी आपने जब मर्जी चाहें, उसका कोई चार्जेस वार्जेस नहीं होंगे. सो हर चीज़ की जो है वो इवन एयरलाइंस भी उसी चीज़ को कर रही हैं कि जी आप अगर आपको नॉन रिफंडेबल चाहिए, जैसे आप कहते हो ये सस्ती टिकट चाहिए, तो आप कहोगे यार ये ऑप्शन है. बट दैट इज़ वेयर a good tour operator slash your consultant, travel consultant कि जी है तो सही ये मॉडल अवेलेबल, बट ये फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी है. ये अगर आप किसी वजह से 1 महीने पहले आप मैंने कहा कि जी मुझे टिकट भी दे दें और मुझे नॉन रिफंडेबल टिकट दे दें, इफ़ एनीथिंग वाज टू हैपन ड्यूरिंग दैट 1 month पीरियड फॉर विच यू कैन नॉट ट्रैवल, देन डोंट एक्सपेक्ट कि जी ये आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. आई थिंक एक चीज़ जो है वो a good, and I'm pretty convinced on this, that a good advisor will always tell you कि जी this is the pros, these are the pros for this and these are the cons for this. Decision at the end of the day is yours. But टिकट आपने मुझे कहा कि जी इशू कर दो, मैंने कर दी, मैंने आपको बता दिया कि जी ये नॉन रिफंडेबल है, डिसीजन इज़ योर्स. यू सेइंग नहीं जी मुझे यही चाहिए, अच्छा जी ठीक है. फिर 1 महीने के बाद या 1.25 महीने के बाद या 20 दिन 10 दिन पहले अगर वो कहता है कि यार इसको मैं जा नहीं सकता फॉर वट एवर रीज़न, एटलीस्ट उसको ये तो पता है ना कि यार मुझे बता दिया गया था. Education of clients is very important. Very important. Transparency of communication. Yeah, I think both यहीं पे transparency. sometimes our single statement or a piece of advice
saves Yeah, yeah. millions of rupees to a customer, जो कि वो आई वुड से वर्चुअली या जो एप्लीकेशंस हैं वो उसको नहीं इन्फॉर्म करेगी. आई टेल यू व्हाट, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस हमारे पास इतने कई केसेस हैं. किसी ने कनाडा जाना है तो वी टोल्ड देम सम फेयर्स, उसको महंगे लगे, उसने ऑनलाइन जाके परचेज किए, पता चला कि वो वाया यूएसए जा रहा था, वाया यूएसए वो एलिजिबल ही नहीं है जाने के लिए. टिकट और- फिर आया उसका. टिकट पेनल्टीज हैं, वो बहुत मैसिव पेनल्टीज हैं अब तो, $300 जो आप पैसे बचा रहे थे आपने पेनल्टीज में उससे ज़्यादा दे दिए. मैंने कहा ना, एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, यू हैव टू ट्रस्ट. असल में बहुत सारे लोग कहते हैं ये अपने पैसे बचाने के लिए इसने ये वाला ऑप्शन बताया है नहीं. वो बताया इसलिए नहीं कि वो एलिजिबिलिटी नहीं है, चीज़ हम ले ही नहीं सकते. या अगर आपको यूएस वीज़ा है तो यू मेक श्योर कि आप, ये बहुत सारी कम्युनिकेट करके बता दें. इमिग्रेशन के मामला है ना, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है. ख़ास तौर पे आजकल जो रिस्ट्रिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको पता है बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई लोग वन वे टिकट ले लेते हैं, पता चला नहीं ले सकते. तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छा एक एक्सपीरियंस ट्रैवल एजेंट I agree. आपसे कंसल्टेंट शेयर करेगा आपसे. अच्छा चले, we're down to our last 2 minutes. Time is flying, यानी कि पूरा 1 घंटा होने वाला है, पता नहीं चलेगा. चले, last 2 minutes for both of you. Like 3 things that a traveler should keep in mind कि ये गलती ना करूँ मैं, ये या फिर ये 3 चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी है बिफोर ट्रैवलिंग. क्या 3 चीज़ें हैं वो? देखिए, पहली चीज़ तो अपने डॉक्यूमेंट सारे अपडेट रखे. Okay. और कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत लास्ट मिनट, मैं अपना 20 साल का निचोड़ बता रहा हूँ. हमारे पाकिस्तानी नेशन बहुत जल्दी है. सुबह उठे, कोई प्लान लगा या कोई उसका जैकपॉट लगा या कोई प्रॉपर्टी बिकी, उसने कहा मैंने कल जाना है या 4 दिन बाद जाना है, पता चला पासपोर्ट ही वैलिड नहीं है. तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट रखें. 6 months वैलिड होना चाहिए. 6 months वैलिड होना चाहिए. प्लान अर्ली, सेव मोर. देयर इज नो डिनाइंग कि आप जितना अर्ली प्लान कर लेंगे यू विल सेव मोर मनी. आपको बहुत अच्छी अच्छी डील्स काफ़ी अर्से पहले मिल जाती हैं. एंड ऑलवेज लुक फॉर अ रिलायबल एंड एग्जिस्टिंग ट्रैवल एजेंट. रेफरेंस पे आप बिलीव करें कि जो आपका किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर्स ने ट्रैवल किया है. यू गुड टू गो. परफेक्ट. आके अच्छा, मैं ऑब्वियसली आई मीन व्हेनेवर समबडी इज ट्रैवलिंग, तो एक तो यही आइडियली अगर आपने प्लान किया हुआ है तो वो बेस्ट है. आई थिंक वो गोरों को हम यही कहते हैं कि यार वो पूरा 11 महीने जो है वो काम करते हैं फॉर दैट 1 month व्हेन दे एक्चुअली वांट टू रिलैक्स. अली ने बिल्कुल बात सही की है कि जी पता चलेगा कोई जैकपॉट लग गया तो उसने कहा कि यार मैं परसों जो है ना वो ज़रा निकल रहा हूँ ऐसे किधर, तो पता चलो चीज़ें रेडी नहीं. सो ऑब्वियसली प्लान, एंड एज part of that planning is the documentation side. Secondly, do some research as well, especially if you're going as on a tour. do your own homework. Do your own homework. ठीक है, I'm not religious को मैं ज़रा साइड पे रख रहा हूँ because वो थोड़ा उसका तरीक़ेकार या उसका mindset थोड़ा फ़र्क होता है. But when you're going out with the family, you know, you kind of like do your research or especially get help from your trusted consultant, the tour operator के ओर से. And lastly, don't travel without travel insurance. Don't travel without travel insurance. Perfect. Appreciated जी. Thank you very much, Siddhant. Thank you to both of you. अच्छा, before you leave, क्या कहते हैं आकिफ भाई, मुझे आपसे एक सवाल करना हाँ, है. बोलो बोलो बोलो. क्या कहते हैं, this is more of a like a personal feedback वाला question. Okay. Your kids traveled with us last year जब हम school trip पे दुबई गए थे. Yes, they did. We organized that as end-to-end travels. Your family traveled to Singapore, I think. Which month was it? In June? Yes, in July. In July. Yeah. And Kata, you asked end-to-end travels to like organize the whole trip. I just want to get your 2 cents. Like how did it go? Yeah, so इससे बल्कि मैं से एक स्टेप पहले आता हूँ. That I traveled to UAE not last year but the year before. And वो पूरी की पूरी अरेंजमेंट मैंने खुद की थी. सही. अच्छा, that was the first time that my kids were traveling outside of Pakistan. So मैंने कहा कि शायद उनको you know कि उनके हिसाब से, अच्छा बच्चे मेरे छोटे ही हैं, 2 साल पहले तो I think they were like 9 years. So उस वक्त प्लान मैंने खुद की थी. So this time around the Malaysia Singapore trip,
I handed it over, perhaps for the first time, to a tour operator. And honestly, I have never felt better. क्योंकि आपके जहन से जो है ना, I'm glad वो to जो hear एक टेंशन होती है ना कि अच्छा यार ये करना है, अच्छा यार ये करना है, अच्छा यार ये गाड़ी बुलानी है, अच्छा यार ये करना है, आई नेवर फेल्ट रिलैक्स, आई फेल्ट रिलैक्स्ड. अच्छा, कोई भी काम होता था, देखिए देर आर चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं. सो आई वुड जस्ट एंड द गुड पार्ट इज दैट यू नो देयर वाज अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं उसमें डाल देता था वो ठक 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 करके कोई I ना was a कोई part of that, bro. अच्छा, I ठीक है, see that. कोई ना कोई ना सिर्फ रिस्पॉन्ड कर देता था बट उसी वक्त एक इमीडिएट एक्शन भी हो जाता था. सो बेसिकली आई आउटसोर्स्ड एवरीथिंग टू फील रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विद द फैमिली विच I really enjoyed. And coming back to the children's school trip to 38 बच्चे I think उस trip में Yeah, गए थे. 38 kids. There were a few teachers, and obviously there was staff of E2E Travels as well. I think मैं तो एक पेरेंट के हिसाब से अगर मैं फीडबैक दूंगा तो मैं तो ऑब्वियसली फीडबैक अपने बच्चों से फीडबैक लेके दूंगा. दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दे वर pretty relaxed. I think we were sending the children for the first time alone. So parents को जो है ना वो especially moms को जो है ना वो टेंशन होती है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं. I think all the parents, since my mom is, well, since we are also part of the parents group, Yeah. so I think everybody was pretty happy about it. Children- The children I'm glad to hear the that. children were excited. Children had a good time. I think the parents एक apprehension होती है, but no complaints. Chala, I'm glad to hear that. I think travel Please. agents are misrepresented, I would say. Yes, I agree with you. कि वो पता नहीं कितना कमीशन उनको मिलता है और वो कितना यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है या वो ओवर चार्ज करते हैं. हमें चूना लगा रहे हैं और ये ये नेगेटिविटी आई डोंट, मेरा ख्याल है कोई ट्रैवल एजेंट को खुद ओन करनी चाहिए, बताना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दिस सीन. एज प्रिटी एज दैट सीम. एग्जैक्टली. हमारा भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस Oh, है, absolutely. इट हैज़ ग्रोन. हम कैसे हर चीज़ों को सिंक्रनाइज करते हैं ताकि अगेन आपको किसी को भी कि आपको पराए शहर में कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो, एक कपल हो हनीमून पर जा रहा हो, या वो किड बच्चों का ग्रुप हो. तो वो travel agent needs to promote more confidence in their services, in their presentation, and take it on. पता है अली, मैं आपकी सॉरी यार इसको एक मिनट के लिए नहीं एक्सटेंड नहीं करूँगा. प्लीज. आई थिंक एज ह्यूमन नेचर जो नेगेटिव बात होती है ना वो बड़ी जल्दी फैलती है, जो पॉजिटिव बात होती है वो बहुत, वो लोगों को अक्सर को पता ही नहीं चलती. सो आई डोंट नो जी, जस्ट पिकिंग अ रैंडम नंबर के 30 लाख लोगों ने पाकिस्तान से अगर ट्रैवल किया बाहर, वेदर इट इज़ फॉर रिलीजियस रीजंस, वेदर इट्स फॉर बिजनेस, व्हाटएवर, ठीक है, अज्यूमिंग के 30 लाख है, हो सकता है 100 के साथ कोई दो नंबरी भी हुई हो, मगर उस 100 को हम लेके चलते हैं उस 30 लाख के ऊपर. यार सारे के सारे एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि जी सारे के सारे ही. बाकी जो 30 लाख सुकून से जिन्होंने ट्रैवल किया है, या उन 30 में से मैं कहता हूँ जी 5 लाख ऐसा है जिन्होंने शायद टूर ऑपरेटर्स के थ्रू किया हो, यार आप उनके एक्सपीरियंस भी तो देखो ना. एब्सोल्युटली. ठीक है. सो वो यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट इज़ अ मिस नॉमर या मिसकंसेप्शन कि यार वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं. इट्स नॉट द केस यार. तो एवरीथिंग इज़ देयर. It's very transparent. It's like very you can do transparent. your own research and find out. ठीक है. एयरलाइंस दे गिव लिटरली नथिंग टू द ट्रैवल एजेंसीज. तो ठीक है, गिव नथिंग टू द ट्रैवल सुनहरा एजेंसीज. दौर चला गया, वो चला गया हुआ ना. जहाँ किकबैक्स और वो Yeah. वो ज़माना था. मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जिस्ट नहीं कर, मेरी पैदाइश से तो पहले कर रहा हूँ. लेकिन जब से मैंने काम सुना, जो कुछ भी आज है इसी फील्ड का है, से मुझे अल्लाह ताला ने अता किया, लेकिन उसकी एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है. 20-25 साल हो हमने लगाए हैं, तो एक ट्रस्ट बड़ा कीमती चीज़ है. ब्रांड I agree. ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छी, बहुत कीमती चीज़ है. इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग. आई विल डू एनीथिंग टू सेफ गार्ड माई रेपुटेशन. तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है. मतलब एक होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. तो आई थिंक फ्यूचर अच्छा है. असल में हम लोग
दो चीज़ें, एक उम्रा एक अलग बिल्कुल चीज़, उम्रा या हज अलग, ये टूर ऑपरेशन जो लेजर ट्रैवल जाए ये बिल्कुल अलग है। उम्रे की हैंडलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके अलग नॉर्म्स हैं, उसकी अलग जी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप ये टूर ऑपरेशन किसी टूर ऑपरेट तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। आपका और ट्रैवल इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। आई टोटली एब्सोल्युटली। चलें, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ Thank यू। you very आप लोगों much, ने Sam. अपना वैल्यूबल टाइम हम हमारे साथ शेयर किया, एंड दैट्स अ रैप। थैंक यू।